A very good morning to all the students. In the last video of class 12th business studies, we discussed a new chapter, the chapter number 10, financial market. In the last video, we already discussed the two types of the financial market, that is the money market as well as the capital market. Capital market also classified into two categories, that is a primary market and secondary market. Secondary market is also known as the stock exchange. Money market deal with the various kind of securities which are deal for the short term fund whose maturity period is up to 1 year, whereas the capital market is a market which are deal for the long term funds whose maturity period is more than 1 year. As well as we discussed in the primary market, which are types of the capital market. Primary market is a market where we issue a new share to the public through prospectus, buy offer for sale, private placement, right issues and EIPOs are various methods by which securities are issued in the primary market. Whereas the secondary market, which is also known as a stock exchange, there are various types, various function of the stock exchange, like provides liquidity and profitability to existing securities, pricing of securities, safety of transaction, contributes to economic growth, spreading equity cult, and provides a scope for speculation. And there are various kind of operator performing their job on the stock exchange, like a broker, jobbers, bull, bears. Now today we will discuss a new topic of this chapter. The first topic is the difference between the money market and capital market. So on your screen you can easily see that there are basically few differences between the money market and capital market with the appropriate basis. The first difference between the money market and capital market on the basis of the meaning is that मनी मार्केट इज अ मार्केट डीलिंग इन सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म फंड्स हुज मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर. यानी मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म फंड में डील करते हैं और जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल के अंदर की होती है, यानी 1 साल से ज़्यादा नहीं होती. वहीं कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट डीलिंग इन सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म फंड हुज मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 ईयर. यानी कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम ऐसी सिक्योरिटी के साथ डील करते हैं जिनकी जो लॉन्ग टर्म फंड होते हैं, जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं और जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा की होती है. When we are talking about the participants, मनी मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं विच आर द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंस कंपनीज होती हैं. whereas द कैपिटल मार्केट, पार्टिसिपेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स from the member of the public. Okay. And when we about talking about the instrument, so in the money market, instrument traded are T-bill, that is known as a treasury bill, commercial bill, certificate of deposit. Whereas in a capital market, main instrument traded are shares, bonds, debentures, preferential, etc. So the next basis of difference is investment outlay. What is the outlay of the investment? You know very well, in a money market, instrument require huge sum of money because these are quite expensive. यानी मनी मार्केट में जो पीरियड होता है, यानी ड्यूरेशन जो होता है वो 1 साल के अंदर का होता है, बट इसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़्यादा होती है. यानी मनी मार्केट में आपको कम समय के लिए ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. whereas in a capital market it does not require huge capital outlay, as the value of unit is security is generally that is rupees 10, rupees 100. Even the trading lot is kept low at 5, 50 and 100 or so. यानी कि मनी मार्केट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अरेंज करना पड़ता है. और लेकिन अगर हम लोग कैपिटल मार्केट की बात करें तो वहाँ सिक्योरिटीज़ के प्राइस जो होते हैं वो 10 रुपये, 100 रुपये और यहाँ तक कि कहीं कहीं जगहों पे 5 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये तक भी होते हैं, यानी एक सिक्योरिटीज़ के दाम. सो अगर हम बात करें तो मनी मार्केट में ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इन कंपेयर टू द कैपिटल मार्केट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन, तो यू नो वेरी वेल they have a tenure of maximum 1 year, may even be traded for a single day.
अगर हम बात करें फॉर द मनी मार्केट, तो मनी मार्केट में एक दिन के लिए भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक दिन के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक दिन से लेकर 365 दिन यानी 365 डेज फॉर द मैक्सिमम 1 ईयर. Whereas in a capital market deal with the medium term and long term security with a maturity period of more than 1 year. जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट में जब भी हम सिक्योरिटी के साथ डील करते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा की होती है. लिक्विडिटी की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी, कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी की रेशो का जो परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू द मनी मार्केट. यानी मनी मार्केट हैव highly liquid and have an agreement for the providing liquidity which is provided by the Discount and Finance House of India. Okay, whereas when talking about the capital market, the capital market are less liquid. A person wanting to sell share may not be get a buyer. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई सिक्योरिटी हमारे पास है और वी वांट टू सेल देयर सिक्योरिटीज़, तो कभी कभी बायर भी नहीं मिलते. And when we are talking about the risk and safety of the funds, so money market instruments are generally safe due to the shorter duration and credibility of issuers. यानी मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जनरली सेफ होते हैं क्योंकि ड्यूरेशन जो काफ़ी कम होता है, और जो भी इशू होते हैं जो उसके पार्टिसिपेंट होते हैं वो जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं, कई तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में काफ़ी अच्छी होती है. सो दैट्स वाई वी कैन से डैट कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं ड्यूरेशन को देखकर और इशूअर्स की क्रेडिबिलिटी को देखकर. वेयर द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्कियर बोथ इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट अपने न्यूज़ चैनल पे देखते हैं तो उसमें clearly at the end of the advertisement it is very clearly instruct to the all the public कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में, ये दोनों का दोनों पैसे जो हैं वो मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. सो रिटर्न की बात करें और रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल की बात करें तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म तो है, पैसा लग रहा है, रिटर्न भी अच्छा आता है, लेकिन रिटर्न को लेकर रिस्क लगा होता है कि रिटर्न कभी कभी बहुत अच्छे आते हैं, कभी कभी आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते. एंड व्हेन वी आर लास्ट पीस ऑफ द डिफरेंस दैट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. तो द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज़ लेस ड्यू टू द शॉर्ट ड्यूरेशन. सो जो रिटर्न का जो रेट होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के कारण काफ़ी कम होता है इन द मनी मार्केट. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल मार्केट, द एक्सपेक्टेड रिटर्न आर हाई एंड देयर इज़ इवन अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन. और कैपिटल मार्केट में जो रिटर्न होते हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा भी हो सकते हैं. हाँ, कैपिटल गेन होने की भी संभावना है. कैपिटल गेन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं इन द कैपिटल मार्केट, तो आफ्टर 2-3 ईयर्स के बाद आपको 1,50,000 तक की प्रॉफिट होने की संभावनाएं होती. तो कैपिटल मार्केट में आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकते हैं एज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, और वहाँ आपको कैपिटल गेन हो सकता है. बट इन द मनी मार्केट जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो कम होता है क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन हमारी क्या होती है, कम होती है. So there is a few differences between the capital market and money market. Now we will move to the next topic of this chapter. You know very well there are basically two types of the capital market, the primary market and secondary market. And secondary market is also known as the stock exchange. In this market, security are not directly issued by the company to the investor, but it is sold by the existing investor to the other investor. Secondary market, that is a stock exchange, provide liquidity and marketability to existing securities, and all the things, all the working can be performed under the regulatory framework of Security Exchange Board of India. सो जब हम सेकेंडरी मार्केट पे सिक्योरिटीज़ के परचेज एंड सेल, उनकी लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ एक प्रॉपर एक प्री डिटरमाइंड प्रोसीजर की बात होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर. यानी कि जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू है और जो उसका बायर है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाकर अपनी सिक्योरिटी को सेल कर सकता है. उसको कई तरह के बायर्स मिलते हैं और बायर्स अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी डिज़ायर प्रोवाइड करते हैं कि मैं इस शेयर को ख़रीदना चाहता हूँ. तो जिस सिक्योरिटीज़ की प्राइस सबसे ज़्यादा होती है उसको उसकी प्राइस ज़्यादा होती है और जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसमें पैसा लगाकर उस सिक्योरिटी को परचेस कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, सपोज़ मैंने किसी कंपनी का
प्राइमरी मार्केट से शेयर लेके रखा हूँ, बट आफ्टर 2 या 3 ईयर्स के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो मैं कहाँ जाऊँगा? कंपनी तो उसका रिफ़ंड करेगी नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड है, वो तब तक नहीं करेगी जब तक उसकी मैच्योरिटी पीरियड ना आ जाते। तो मैच्योरिटी पीरियड सपोज़ नहीं आई हुई है, मैच्योरिटी पीरियड अभी नहीं है, तो 2 साल बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं जाऊँगा सेकेंडरी मार्केट, दैट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में मैं उस शेयर को सेल करने के लिए पहले देखूंगा। सेल करने के लिए पहले कई सारे परचेज़र होने बहुत ज़रूरी हैं, बायर्स, क्योंकि बायर्स जो ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, वो जितने नंबर ऑफ बायर्स, जितने ज़्यादा आपके शेयर की डिमांड आएगी मार्केट में, उतने ही आपकी प्राइस जो है सिक्योरिटीज़ के प्राइस उतने ज़्यादा होंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में कैसे हमें ट्रेडिंग करना है, कैसे सेटलमेंट करना है, इसके प्रोसीजर को समझना काफ़ी ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज़ द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। अगर पास्ट की बात करें तो अर्लियर ट्रेडिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज यूज टू टेक प्लेस ऑन द फ्लोर और स्टॉक एक्सचेंज वेयर प्राइजेज आर शाउटेड आउट एंड शेयर वेयर शोड टू द हाईएस्ट बिडर। यानी पहले की बात करें तो पहले स्टॉक एक्सचेंज पे जो पेमेंट होता था, जो प्राइसेस होते थे, वो बिडिंग पे डिपेंड करते थे। यानी कई जो सेलर हैं वो एक जगह पर और जो बायर्स हैं वो एक जगह पर इकट्ठे होते थे, और जो बायर हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, तो वो बिडिंग करते थे किसी भी शेयर्स की। बिडिंग करने पे जिसकी जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडिंग होती थी उसे वो शेयर प्रोवाइड किया जाता था। बट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, यू नो ऑल द थिंग्स आर वेरी कंप्यूटराइज एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, कंप्यूटर का यूज़ बढ़ चुका है। तो however nowadays trading is be done electronically in the broker's office through a computer terminal which is connected to the main computer system of the stock exchange। यानी स्टॉक एक्सचेंज ने अपना एक प्रॉपर कंप्यूटर नेटवर्क डिस्क्राइब किया जिसमें हर बंदे का जो शेयर है, यानी जो हर इन्वेस्टर्स हैं उनके शेयर्स को लिस्ट कराया गया है। हर इन्वेस्टर्स के शेयर की प्राइसिंग डिसाइड की गई है, और वो प्राइसिंग किस बेसिस पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर शेयर की मार्केट में डिमांड क्या है। यानी एनी मेंबर कैन गो लॉग ऑन द साइट, यानी आप साइट पे जा सकते हैं, फीड द इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं अपने शेयर की, कि आपके पास कौन सी कंपनी के शेयर हैं, उसकी प्राइसेस क्या थी, वो कंपनी आपको क्या रिटर्न देती है। तो उस बेसिस के अकॉर्डिंग जो वहाँ की पब्लिक है स्टॉक एक्सचेंज पे जो डील करना चाहती है, ही वॉन्ट्स टू बाइट और सेल एंड द प्राइस इनटू द कंप्यूटर, वो प्राइस कंप्यूटर में डालती है अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटिव बाय मैचिंग द ऑर्डर द बेस्ट बिड एंड ऑफर प्राइस। जैसे मैंने अपने शेयर की इन्फॉर्मेशन सारी फीड कर दी ऑनलाइन, और अपना एक एक्सपेक्टेड प्राइस डिसाइड कर दिया कि मुझे इतने रुपए में बेच सकता हूँ। तो उससे रिलेटिवली कुछ लोग हाईएस्ट बिड करेंगे, अगर आपका शेयर मार्केट में अच्छा वर्क कर रहा है तो लोग उससे ज़्यादा बिड करेंगे, और कुछ लोग आपसे निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो जो आपको ऑफ़र बेस्ट लगेगा, जो ऑफ़र प्राइस आपको अच्छा लगेगा, वहाँ पे आप अपने शेयर को सेल कर सकते हो। यानी पूरा ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वो बिकम अ वेरी इलेक्ट्रॉनिकली, वो इलेक्ट्रॉनिक बन चुका है। वेबसाइट्स डिस्कवर्ड किए गए हैं, ऑनलाइन के थ्रू आप अपने शेयर्स को एंड सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं, और ईजिली जो आपके पास बायर भी अवेलेबल हो जाते हैं, बायर भी अपने ऑफर प्राइस को प्रोवाइड करते हैं, और सेलर को जो उसमें से बेस्ट बिड लगती है वो उस प्राइस पे उस शेयर को सेल कर सकता है। नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, यानी जो अभी समय ट्रेडिंग प्रोसीजर चल रहा है उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो सर फर्स्ट वन इज इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एट इज अलाउज पार्टिसिपेंट टू सी द प्राइजेज ऑफ सिक्योरिटी इन द मार्केट। यानी सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमें जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज़ रन कर रही हैं उनके प्राइस की ट्रांसपेरेंसी रहती है। यानी हम झूठ नहीं बोल सकते हैं कि मेरे शेयर का प्राइस इतना है। शेयर के जो प्राइस हैं बेसिकली वो उस पर्टिकुलर शेयर की डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। यानी जिस पर्टिकुलर शेयर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी उसके प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होगी। जनरली आप फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन पे शॉपिंग भी करते हैं तो जनरली आप देखते हैं किसी प्रोडक्ट की जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है, और जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम रहती है तो लोग उस पर ऑफ़र देते हैं, डिस्काउंट देते हैं ताकि आप उस प्रोडक्ट को परचेस करें। सो वो भी एक तरह का यही सिस्टम है जहाँ हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करें। एक बेस प्राइस लेके चलते हैं कि इतना तो मिलना ही चाहिए ताकि जो सेलर है उसको एक ऑप्टिमम प्रॉफिट तो रिसीव हो, जो वो डिज़ायर्ड प्रॉफिट है। उससे ज़्यादा मिल जाए तो सेलर के लिए और अच्छी बात है। The second advantage of the screen-based trading system that is it helps in fixing the prices efficiently because of the efficiency of the information being passed on। यानी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के हेल्प से
हम एक ईज़िली हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमें ईज़िली लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि लोग जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो कितने रुपए में उस शेयर को परचेस करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम ईज़िली उस शेयर की प्राइस को डिसाइड करने में हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। द थर्ड वन इज देयर इज अ रिडक्शन इन टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ एरर बिकॉज ऑफ इंक्रीज एफिशिएंसी। ट्रेडिशनली वे से और प्रेजेंटली वे में अगर हम देखें तो घर बैठे ये सारे काम हो सकते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं होता है। आप जब चाहें तब बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं, टाइम का कोई इशू नहीं होता है। और रीपेमेंट एंड रिफ़ंड की अगर बात करें तो वो उसका रिस्क भी काफ़ी कम होता है। सो अगर हम बात करें तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में हमारे टाइम की बचत होती है, पैसे की बचत होती है और रिस्क भी होता है कि अगर हम किसी बाई फॉल्ट अगर कोई ट्रांजेक्शन कर बैठे हैं तो उसके लिए हमारे पास उसके भी ऑप्शन होते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन पे शॉपिंग कर रहे हो, बाई द फॉल्ट आपने कोई गलत ट्रांजेक्शन कर लिया तो उसका रिफंड आपको मिल जाता है। तो वही यहाँ पे भी सिस्टम है कि अगर बाई फॉल्ट आपने किसी कंपनी का शेयर परचेस कर लिया, वैसे तो नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो इंसान तभी जब भी कोई भी शेयर परचेस करता है तो प्रॉपरली काफ़ी सोच समझ के ही करता है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से कोई एरर हो जाता है तो उसके लिए भी उसमें भी रिस्क नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करता है। द फोर्थ वन, इट इनेबल्स अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन टू ट्रेड विथ ईच अदर लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टॉक मार्केट के साथ ऑनलाइन सिस्टम ऐड होने से, यानी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऐड होने से ट्रेड काफ़ी बड़े लेवल पे हो जाते हैं। यानी यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो पब्लिक है, वो काफ़ी बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करती है। अगर हम कहें आपसे कि किसी भी चीज़ में आपको फिज़िकली जाके प्रेजेंट होना है और किसी चीज़ पे जाके आपको घर बैठ के ऑनलाइन प्रेजेंट होना है, तो आपके हिसाब से कंफर्ट जोन क्या रहेगा आपका? ऑनलाइन आप प्रेजेंट हो जाएं। जैसे अगर आपको कोई सेमिनार या वेबिनार अटेंड करना है तो आप वहाँ जाओगे, फिज़िकली प्रेजेंट होगे, उसके लिए आपको हो सकता है काफ़ी चीज़ों को बियर करना पड़े। तो आप एक बार सोचोगे कि चलो यार कौन करे। लेकिन जब आप ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे मन में आ जाता है, अरे वहाँ जाना तो है नहीं, बस मोबाइल में लॉगिन करना है, मोबाइल में बैठ के देखना है। तो कहीं ना कहीं आपका भी उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि वहाँ पे आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम से ये भी फ़ायदा हुआ है कि पार्टिसिपेशन के जो नंबर हैं वो काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि आप एक जगह बैठ के आराम से उन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नंबर फिफ्थ वन इज़ ऑल द ट्रेडिंग सेंटर्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री हैव बीन ब्रॉट ऑन टू द वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी कंट्री के जितने भी ट्रेडिंग सेंटर्स हैं वो एक जगह बैठकर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बैठकर अपनी किसी भी शेयर को परचेस करने के लिए बिड कर सकते हैं। सेलर अपने शेयर को सेल करने के लिए वो कर सकता है, लिस्ट करा सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे बायर एंड सेलर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मीट होते हैं, वो भी ऑल ओवर इन कंट्री की बात हो रही है, ऑल ओवर स्टेट की बात नहीं हो रही, ऑल ओवर सिटी की बात नहीं हो रही है, बल्कि ऑल ओवर द कंट्री, यानी कंट्री के लेवल पे यहाँ पे बात होती है कि एक कंट्री पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, सोच लीजिए। तो वहाँ पे सब लोग एक जगह बैठकर आराम से एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे शेयर को कोई भी साउथ से कोई परचेस कर ले, केरल तमिलनाडु से कोई परचेस कर ले जिसको हम जानते भी नहीं हैं, और हो सकता है कि हम उसके शेयर को कोई जम्मू एंड कश्मीर में परचेस कर ले। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ फिज़िकली काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम होने से, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होने से ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट ये होता है कि हम ईज़िली अपने शेयर को सेल कर सकते हैं और ऑल ओवर द कंट्री हम वर्क कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ ऑनलाइन और द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जो प्रेजेंटली हमारे स्टॉक एक्सचेंज में वर्क कर रहा है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्टेप इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको अपने शेयर को ट्रेड करना है, उसका सेटलमेंट करना है, जैसे हम लोगों ने पहले उसी हेडिंग पे बात कर रहे हैं, तो विच टाइप्स ऑफ स्टेप विल बी फॉलोड बाय द एवरी पोटेंशियल बायर्स, यानी और द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। जैसे सपोज इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट, अगर आपको स्टॉक मार्केट से कोई शेयर खरीदना है या कोई सिक्योरिटीज़ को परचेज या सेल करना है, तो व्हाट टाइप्स ऑफ द स्टेप्स विल बी फॉलोड बाय द एवरी पोटेंशियल बायर्स एंड द सेलर।
So the step number one is approaching the broker. यानी the first step is undertaken by an investor who wishes to either buy or sell securities. He approaches a registered broker or sub broker to enter into an agreement with him. यानी सबसे पहला बात ये होता है कि जब भी आपको अपनी सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना है, सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदना है या उसमें बेचना है, तो सबसे पहले आप अपने एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट करोगे. एग्रीमेंट करने का मतलब है उसे अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे. ही हैज़ टू साइन अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. यानी आप उसके क्लाइंट बनोगे, यानी आप अपने ब्रोकर से मिलोगे, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, आपको स्टॉक मार्केट तो जानता नहीं है, तो आप एक ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट करोगे. ब्रोकर आपको एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म देगा. उस क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इंपॉर्टेंट वे में. वो है पैन नंबर and date of birth and address, bank account details, education, qualification and occupation, residential status, that is Indian or non-residential Indian, depository account details, name of any other broker with the whom registered, client code number in client registration form. यानी जो broker आपको client registration form देगा उस पर आपका client code number होगा. The broker that open a trading account in the name of the investor. Suppose मेरे नाम, मैं स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर अपनी सिक्योरिटी को सेल या परचेस करना चाहता हूँ, तो पहले मैं ब्रोकर से मिलूँगा. ब्रोकर एक फॉर्म फिलअप करेगा, यानी मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टॉक मार्केट के साथ शेयर करेगा. वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके डिटेल मैंने आपको बताई. बेसिकली 8 इंपॉर्टेंट डिटेल होती है, नाम से लेकर क्लाइंट कोड नंबर तक, और वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ वो मेरा अकाउंट स्टॉक मार्केट पे एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा मेरे नाम से. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी क्लियर. द स्टेप नंबर 2, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट. The investor then has to open a demat account or beneficial owner account with a depository participant for holding and transferring security. He also has to open a bank account for any cash transaction. You know very well कि जब भी हम स्टॉक मार्केट पे डील करते हैं तो हमारे अकाउंट में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए. जैसे हम जनरली सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं, एज इट इज़ हमें अपने बैंक अकाउंट के साथ डीमैट अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है. जनरली आपने नाम भी सुना होगा कि डीमैट अकाउंट. तो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करने के लिए एक स्पेसिफिक डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है. डीमैट अकाउंट का मतलब ये होता है कि जो आपके स्टॉक मार्केट के साथ अटैच होगा. जब भी आप सिक्योरिटी को सेल करोगे तो जो सेल की वैल्यू है वो उस डीमैट अकाउंट में आ जाएगी, और जब आप किसी भी सिक्योरिटीज़ को परचेस करोगे तो उस डीमैट अकाउंट से आपके अकाउंट से पैसे कट के उसके पास चले जाएंगे. तो स्टेप नंबर 2 है कि आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करिए अपने बैंक अकाउंट के साथ, और जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो आपके और सेलर के बीच में, यानी जो सिक्योरिटी सेल कर रहा है और आपके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी मनी की, वो उस अकाउंट के साथ डील की जाएगी. So the next one is step number 3 is a placing an order. The investor then place an order with a broker to buy or sell security. यानी उसके बाद, यानी आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट हो गया स्टॉक एक्सचेंज के पास, और दूसरा आपके पास डीमैट अकाउंट है. जब ये दोनों चीज़ें हैं तो तीसरा स्टेप है कि सपोज़ अगर आपको कोई अपनी सिक्योरिटी परचेस करनी है, और क्योंकि आप ये सारा काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या करना है, अपनी सिक्योरिटी को सेल करना है या फिर नई सिक्योरिटी को परचेस करना है. तो आप क्या करोगे, सपोज़ अगर आपको कोई सिक्योरिटी परचेस करनी है तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन बताओगे. प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब है अपने ऑर्डर को प्लेस करोगे कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर आपको ख़रीदने हैं, किस प्राइस पे शेयर ख़रीदना है, ठीक है, या फिर कितने नंबर ऑफ़ शेयर आपको सेल करने हैं और किस प्राइस पे आपको सेल करना है. यानी इन्वेस्टर देन प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर, यानी ब्रोकर से आप इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे कि आपको टू बाई और सेल द सिक्योरिटीज़. For this, he has to specify the number of share and the price at which the share should be bought or sold. After finding an appropriate deal, the broker issues an order confirmation slip to the investor. यानी जब आपने एक ऑर्डर प्लेस किया तो एक अप्रोप्रिएट डील जब मिलेगी ब्रोकर को, क्योंकि ब्रोकर को आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आपको कितने नंबर ऑफ़ शेयर परचेस करने हैं, किस प्राइस पे परचेस करने हैं, यानी कितना आपको इन्वेस्ट करना है. और जब सेलिंग की बात करेंगे तो आप ब्रोकर को इन्फॉर्मेशन कन्वे करोगे कि आपको कितना शेयर अपना सेल करना है, किस प्राइस पे शेयर करना है. तो उस ऑर्डर, उस एक्सपेक्टेड ऑर्डर के आसपास जो आपका ब्रोकर है वो एक अप्रोप्रिएट डील आपको प्रोवाइड करेगा. ठीक है, जैसे आप अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो तो आप जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, ऑर्डर के लिए सर्च करते हो, तो उसकी एक अप्रोप्रिएट डील ओपन हो जाती है कि इस कंपनी का इतने का है, इस कंपनी का इतने का है, इस कंपनी का इतने का है, या एक ही सेम प्रोडक्ट सेम कंपनी के सेलर अलग अलग हो जाते हैं.
तो वहाँ पे भी बेस्ट डील आपको दिखाई जाती है और नीचे कुछ ऑप्शन भी दिए जाते हैं कि अगर आप यहाँ से खरीदोगे तो इतने रुपए का पड़ेगा, यहाँ से खरीदोगे तो इतने का पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट सेलर विद रजिस्टर्ड विद द फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। सो वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है कि आप जब भी कोई शेयर परचेज या सेल कर रहे हो तो आपको एक अप्रोप्रिएट डील प्रोवाइड करता है ब्रोकर, और ब्रोकर आपको एक ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को कि जो इन्वेस्टर है वो उन सारे डील में से जो भी अप्रोप्रिएट डील, या तो ब्रोकर डिसाइड कर लेता है कि उसमें से अप्रोप्रिएट डील क्या है आपकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, या फिर आप खुद उसमें से सेलेक्ट करो कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट डील है। तो आपको एक ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप देगा, कहेगा कि इसको आप देख लो और उस पर कन्फर्मेशन दे दो। तो यानी आपने जब कन्फर्मेशन दे दिया तो स्टेप नंबर 4 इज फाइंडिंग अ डील। The broker then goes to the online stock market and match the share with the best price available. The broker terminal will be informed when the share can be bought or sold at a mentioned price. The order will be executed electronically. After this, he will issue a trade confirmation slip to the investor. यानी जब आपने इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपको इस तरह का शेयर परचेस करना है, इतने प्राइस पे शेयर करना है, पे परचेस करना है, वैसे ही सेलिंग के केस में भी कितने नंबर ऑफ शेयर सेल करने हैं, इस प्राइस पे सेल करना है, जैसे ही वो समय आता है, जैसे ही वो मौका आता है तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिकली वे में वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड देयर आफ्टर ही विल इशू अ ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। उसके बाद आपका जो ब्रोकर है यानी स्टॉक मार्केट एक या ब्रोकर जो है वो आपको ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप देता है कि आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, आपके कन्फर्मेशन के अकॉर्डिंग एक डील हो गई है, वो इतने आपका शेयर जो है इतना शेयर इतने प्राइस पे सेल हुआ है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में होता है इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट। Within 24 hours of the execution of the order, the broker issue a contract note। यानी 24 घंटे के अंदर, ऑर्डर के कंप्लीट होने के 24 घंटे के अंदर द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है जिसमें बताता है कि कंटेनिंग डिटेल ऑफ द शेयर, यानी शेयर के बारे में बताता है कि कौन सा शेयर आपका सेल हुआ है, किस प्राइस पे सेल हुआ है, उसके डेट एंड टाइम क्या है, एंड आपके इस ट्रांजेक्शन के लिए आपसे कितना ब्रोकरेज चार्ज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप परचेज करना चाहते हो तो कौन से शेयर आपने परचेस किए हैं, उसका प्राइस क्या है, डेट एंड टाइम क्या है और ब्रोकरेज क्या है। एंड यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन एट द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी ऑर्डर होते हैं, जितने भी ऑर्डर परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो परचेस से रिलेटेड हो, चाहे वो सेलिंग से रिलेटेड हो, उस पर आपको एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर असाइन किया जाता है। डिलीवरी ऑफ शेयर विल टेक प्लेस ऑन और बिफोर द डे ऑफ पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर द इशू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये बात याद रखनी है कि जो शेयर की डिलीवरी यानी शेयर की जो ओनरशिप है, सपोज वो एक्स के नाम पे था, वाई ने उसको परचेस कर लिया, तो वाई के नाम पे जब वो शेयर होगा वो या तो ऑर्डर होने के तुरंत बाद हो जाता है, या तो जैसे ही आप उस शेयर, जैसे आपने परचेस किया कोई शेयर, तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो उसके बाद आपके नाम पे वो शेयर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ पे इन डे, ठीक है, विच इज़ बिफोर द T+2 डे एज द डील हैज़ टू बी सेटल ऑन द T+2 डेट। T+2 में तो ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 डे, आपको 2 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है कि 2 दिन के अंदर आप क्या करो, पेमेंट कर दो ताकि आपके नाम पे वो शेयर ट्रांसफर हो जाए। द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द ब्रोकर। यानी जो परचेजर है वो पेमेंट किसको करेगा, ब्रोकर को, ब्रोकर किसको पेमेंट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में। दिस इज कॉल्ड अ पे आउट डे। यानी कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि डिलीवरी की जो शेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट नेट इशू करने पे, ठीक है, उसके पहले या उसके बाद आपको कर दिया जाता है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पे इन डे, यानी जिस दिन पे हुआ उसी दिन आपको क्या कर दिया गया, शेयर ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन कभी कभी T+2 डेज़ का भी ट्रांसफर लिया जाता है। T+2 डेज़ मतलब ट्रांजेक्शन डेट से 2 दिन के। इसमें आप जब पेमेंट करते हो ब्रोकर को, उसके बाद आपको शेयर ट्रांसफर किया था। द ब्रोकर देन हैज़ टू मेक द पेमेंट टू द इन्वेस्टर विद इन 24 ऑफ द पे आउट डे। फाइनली द broker can make delivery of the share in demat from directly to the investor demat account. The investor has to give detail the depository participant about his demat account to take delivery of security directly into his benefit owner account. सो लास्ट जो स्टेप है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन ईजिली वर्ड में अगर आप समझिए कि जब आपने पेमेंट कर दिया, आपके नाम पे शेयर आ गया, तो उसमें 2 तरीके का एक पे एक होता है आपका, इसमें आप देखिएगा, इसमें लिखा होगा, पहला पॉइंट होता है द पे इन डे, जिस डे ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन आपने पे कर दिया। और कुछ होता है पे आउट डे। पे आउट डे का होता है ट्रांजेक्शन से 2 दिन तक का, ओके। और जब लास्ट में जब सारा पेमेंट हो जाता है, ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ द शेयर इन डीमेट फ्रॉम डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट। जो इन्वेस्टर ने डीमेट अकाउंट
बनाया है उसमें आपके पास सिक्योरिटीज़ चली जाती है। द इन्वेस्टर हैज़ टू गिव डिटेल टू हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अबाउट हिज डीमैट अकाउंट, यानी इन्वेस्टर को डिटेल देनी पड़ती है अपने डिपॉजिटरी पेमेंट पार्टिसिपेंट की। ये भी ध्यान रखिएगा कि पहला स्टेप आपने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो दी थी आपको, जब आप स्टार्टिंग में जब क्लाइंट कोड नंबर के लिए आपको चाहिए होता है, आपका जब रजिस्ट्रेशन होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आपको अपनी डीमैट अकाउंट की भी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अपने ब्रोकर को देनी पड़ती है। यानी कि द इन्वेस्टर हैज़ टू गिव डिटेल टू हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अबाउट दिस डीमैट अकाउंट, यानी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उसको अपने डीमैट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि सिक्योरिटीज़ डायरेक्टली आपके अकाउंट में प्रोवाइड किए, यानी वो आपके डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी आ जाती है, उसका पेमेंट भी वहीं से हो जाता है। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो दे आर बेसिकली 5 स्टेप ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। द फर्स्ट स्टेप इज द approaching a broker, second one is opening a demat account, third one is placing an order, fourth one is finding a deal, fifth one is issuing contract note. So basically यहाँ पे 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं फॉर द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द stock exchange. So today we cleared some of the important topic of this chapter. So I hope today we clear all the topic very easily. Apart from this, if you have any doubts or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes. Okay, so आज के लिए इतना, thanks a lot. In the next video we will come to discuss a new topic of this chapter. Okay, bye bye.